یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 156 اور 157 158 159 یہ چند آیات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کی طرح انسان کو نہیں ہو جانا چاہیے کسی بھی چیز میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے تو پھر اس کا شمار اسی میں سے ہونے لگے گا۔ تو مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ ہمیں کفار جیسا نہیں بننا۔ قرآن پاک میں ایسی آیتیں ہیں، احادیث موجود ہیں کہ ہمیں ان کے جیسا نہیں بننا۔ ہماری اپنی چیز اگر ان کے یہاں پائی جائے تو وہ لے سکتے ہو، لیکن ان کی چیز جو ان کا شعار، ان کی پہچان یا ان کی سوچ اور فکر کی عکاسی کرے اس کو مت لو۔ جو ان کی سوچ اور فکر کی عکاسی کرے اس کو نہیں لینا چاہیے، اور جو چیز ہماری ہے وہ ہماری ہے چاہے کہیں سے بھی ظاہر ہو۔ یہ دونوں کا فرق ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ایک خاص حوالے سے کہا جا رہا ہے آگے، تو یہ گویا کہ ایسی بات ہے کہ جس میں کافروں کی جیسی سوچ اور فکر، اس کو کہا گیا کہ ایسے مت سوچو تم، نہ اس کے مطابق بات کرو۔ وہ کیا تھا؟ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، جب وہ زمین میں چلے، سفر کیا، أَوْ كَانُوا غُزًّى، یا لڑائی میں جہاد میں وہ شریک ہوئے، تو کیا کہتے تھے یہ کفار منافق؟ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا، کاش کہ یہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ یہ ایک سوچ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا ان کا، ایسے لوگوں کے بارے میں کہنا کہ جن پہ کوئی مصیبت آ گئی، جو جہاد میں مارے گئے، قتل ہوئے، شہید ہوئے، جو سفر میں کسی حادثے کا شکار ہو گئے، تو اب ان کا یہ کہنا کہ یہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو یہ نہ مرتے، ان پر یہ مصیبت نہ آتی ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، اور یہ تقدیر کے انکار کی سوچ ہے۔ یہ دراصل تقدیر کا انکار ہے۔ ہمارے یہاں تقدیر کا تصور ہے ہر چیز مقدر ہے، اللہ نے سب لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ بات کوئی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ انکار کر رہا ہے۔ کافر تو انکار ہی کر رہا ہے، منافق بھی انکار ہی کر رہا ہے۔ نہ مرتے کا مطلب یعنی ان کی موت نہ آتی، اور یہ معاملہ بدل سکتا تھا، ہر صورت میں بدل سکتا تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جو معاملہ لکھا ہوا ہے وہ نہیں بدل سکتا۔ جو تقدیر میں طے ہو چکا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اس کی ٹائمنگ بھی فکس ہے، اس کی لوکیشن، اس کی جگہ، اس کا موقع، اس کا سبب، یہ سب فکس ہے۔ یہ لکھ دیا قلم نے، ہزاروں اس پہ دلیلیں موجود ہیں، اور تقدیر کا عقیدہ ہمارے بنیادی عقائد میں داخل ہے۔ لہذا کوئی بھی مسلمان بالیقین یہ بات کبھی نہ کرے کہ نہیں یہ چینج ہو سکتا تھا، یہ بدل سکتا، بالیقین نہ کرے۔ اسباب کے تحت کبھی لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، مسلمان کر دیتے ہیں۔ میں اس کا ایک الگ سے حکم بتاتا ہوں کہ یہ جو اگر مگر کہہ کے ہم بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں شریعت نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے اور ہمیں کیا آداب سکھائے گئے ہیں۔ تو پہلے یہاں یہ سمجھ لیں کہ انکار کی بنیاد پہ یہ بات کرنا یہ کفر ہے، کہ بھئی اگر ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، ویسا کر لیتے تو ویسا۔ اگر تقدیر پہ ایمان نہیں ہے تو یہ کفر، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تم ان کی طرح مت سوچو، تم ان کی طرح مت کہا کرو۔ اس لیے اب علماء نے کہا کہ کوئی اگر انکار نہیں بھی کرتا تو بھی ایسی بات نہ کرے۔ اگر یقین کے ساتھ کر رہا ہے تو منع ہے، بالکل حرام، گناہ ہے۔ اور اگر ویسے ہی کسی اور سبب سے کہ افسوس کے اظہار کے لیے کوئی کر دیتا ہے ایسی بات، تو وہ بھی، اس میں بھی کراہیت ہے، اس میں بھی کراہیت ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ تم اگر مت کہا کرو، وَلَا تَقُلْ لَوْ، یہ لو مت کہا کرو، کیونکہ فرمایا کہ یہ جو لو ہے نا، اگر، جس کے معنی ہوتے ہیں اگر کے، تو یہ ان لو
तफ्तहु अमल शैतान, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फरमाया ये जो लव है ये शैतान के अमल का दरवाजा खोलता है। तो तुम ऐसा नहीं कहा करो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा वैसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। और खास तौर पे ऐसे मामलात में जिसमें तकदीर मुबरम पाई जाती है, यानी मौत और जीस्त के मामलात में, ये तो अटल चीजें हैं ना, इनका ताल्लुक मौल्लक से भी नहीं है। मुबरम यानी अल्लाह ताला ने मौत और हयात लिख दी है सबकी, और किसने कब मरना है ये सब तयशुदा है। तो इसलिए इस किस्म के मामलात में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो हमारी दस्तरस में होती हैं और आम असबाब के तहत जुड़ी होती हैं, उनके बारे में अगर कोई इस तौर पे करे कि किसी की तरबियत के लिए, किसी की इस्लाह के लिए या किसी अफसोस के इजहार के लिए, तो वो एक अलग बात है। मिसाल के तौर पे बच्चों से ये कहा जाए अगर तुम इम्तिहान में मेहनत कर लेते तो पास हो जाते, ये एक आम सी चीज है ना। तो इस किस्म के मामलात में अगर कह दिया जाए तो ये ऐसा नहीं है कि अगर तुम मेहनत कर लेते तो कामयाब हो जाते, अगर तुम फलां जगह अप्लाई करते तो तुम्हारा काम बन जाता, अगर फलां कोशिश कर लेते तो तुम्हारे लिए बेहतर हो जाता। लेकिन इसमें भी इनकार नहीं है तकदीर का, ये यकीन है कि हुआ वही है जो तकदीर में था, ये यकीन है। तो हमें माजी के हवाले से आम तौर पे ये अगर मगर से बचना चाहिए कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि इस हदीस में वाज़ेह तौर पे मना किया और इस आयत के अंदर इसको काफिरों का तरीका बताया, मुनाफिकीन का तरीका। माजी के हवाले से अगर मगर ना करें। हदीस पाक जो है ना, ये मुस्लिम शरीफ की जिसका मैंने हवाला दिया, आखिरी कलेमा आते हैं, फरमाया ये लव यानी अगर शैतान के अमल का दरवाजा खोलता है। इससे पहले जो बात फरमाई वो बड़े काम की बात है, ताकि लोगों को अमल पर उकसाया जाए, अंगेज किया जाए और लोगों को हिम्मत दिलाई जाए कि लोग उठें, करें को जो कर सकते हैं। ये बातें हुजूर ने फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल मोमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिन दईफ। जो कभी मोमिन होता है वो अल्लाह के नजदीक ज़ईफ मोमिन से ज्यादा पसंदीदा होता है। देखिए, मजबूत मोमिन, कभी तवाना, तो इंसान को कभी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। और फिर इरशाद फरमाया फी कुल्लिन खैर, हर चीज में खैर है, हर चीज के अंदर खैर होती है। जो भी जायज मामलात हैं, जो हलाल चीजें हैं, उसके अंदर खैर है। लिहाजा इरशाद फरमाया तुम उसमें खैर के लिए कोशिश करो। फी कुल्लिन खैर, तो इहरिस अला मा यनफउक, जो खैर है, जो फायदे की चीज है, तुम उसके लिए हिर्स करो जिससे तुम्हें फायदा पहुंचे। और फरमाया वला ताजिज, आजिज मत बनो, वस्तईन बिल्लाह, और अल्लाह से मदद तलब करो, आजिज मत बनो। और यूं कहो कि अल्लाह की तकदीर जो उसने चाहा वो हो गया, कदरुल्लाह है शाह मा शाह फाला, अल्लाह की तकदीर है, जो उसने चाहा वो हो गया। और फरमाया वला तकुल, और ये मत कहो कि लव फालतु काना कदा बकदा, अगर मैं ये कर लेता तो ऐसा ऐसा हो जाता, ये ना कहो। और फरमाया आखिर में वही बात, लव मत कहो, क्योंकि ये शैतान के अमल का दरवाजा खोलता है। देखिए कैसी हिदायत है कि हमें स्ट्रगल करने के लिए कहा गया, हमेशा एक्टिव रहो, कभी बनो, अल्लाह पे भरोसा करो। ये जो अगर की बात है ना, ये असल में हमें तोड़ती है। जब हम माजी में जाते हैं और पीछे याद करते हैं नाकामियों को, और अगर बगर के चक्कर में पड़ते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो हम ये कर ले, इससे क्या होता है, अफसुर्दगी बढ़ती है, इससे मायूसी बढ़ती है। इंसान अपने फेलियर को याद करता रहता है, बस अब जो हो गया सो हो गया। इसको इसलिए छुड़वाया जा रहा है ताकि आपका अफसोस कम हो और आप आगे की तरफ देख सके। जितना आप इसमें गौर करेंगे, अगर ये हो जाता, अगर अब हाथ में तो कुछ है नहीं, होना कुछ है नहीं, जो होना था वो हो चुका,
अब क्या फायदा ये बातें करने का, इसलिए तकदीर पे छोड़ो। अल्लाह की तकदीर, जो उसने चाहा वो हुआ। और ये मोमिन के लिए बड़े इत्मीनान की बात है कि मेरे मालिक की मर्जी चल गई, इससे अच्छी क्या बात होगी। जब कोई गुलाम अदना, कोई हकीर, कोई अपने आका की मर्जी होता हुआ देखता है तो उस पर रंजीदा थोड़ी होता है। और अल्लाह जैसी जात जो सब आकाओं का आका है, सबसे बड़ा है, खालिक व मालिक है, उसी का इख्तियार है, उसी की मर्जी चलती है, चलनी चाहिए, लिहाजा उसकी मर्जी के मुताबिक हुआ। इसमें बंदे को एक गुना इत्मीनान, और जितना ईमान कभी उतना ज्यादा इत्मीनान कि मालिक तेरी मर्जी के मुताबिक हुआ, मैं तेरी रिजा के साथ राजी हूं, जैसा तूने चाहा वैसा हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इसीलिए फरमाते थे, कितनी प्यारी बात है, अरफ तो रब्बी बेफस्किल अज़ाइम, हम शिकवे करते हैं, वो फरमाते हैं मैंने तो अपने रब को पाया ही इसी रास्ते से, जब मैंने देखा कि उसी की मर्जी चल रही है, मेरी नहीं चली। मैंने ये चाहा था और हो गया, मैंने ऐसा चाहा था और वैसा हो गया, तो मर्जी तो रब की चली। तो फरमाते हैं बस मैंने इसी तरह रब को पहचाना, उसकी मारिफत को खूब बढ़ाया मैंने, ये अल्लाह तू ही तू है। फिर तो देखिए कितना नफा है इसमें, नाकामियों में नफा दुनिया में कहीं मिलेगा ये तसव्वुर? नाकामियों में, नामुरादियों में इंसान को अल्लाह की मारिफत का फायदा हो जाए तो क्या बात है, ये कितनी बड़ी बात है। वरना नाकामियां तो इंसान को मायूसी की तरफ ले जाती है, मायूसी इंसान को हलाकत और खुदकुशी की तरफ ले जाती है। और यही हाल है कुफार के माशरे का इस वक्त भी। तमाम तर खुशहालियों के बावजूद वो फौरन डेस्परेट हो जाते हैं, ना मायूस हो जाते हैं और खुदकुशी की तरफ माइल। हालांकि हर तरह की चीज उनके पास मौजूद है, सारी सहूलतें मौजूद हैं, आसानियां मौजूद हैं, मगर बात वही है, अकीदा बहुत बड़ी चीज है। इस अकीदे को सही होना चाहिए, तसव्वुर सही होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम माजी से बाहर आ जाएं, माजी की नाकामियों को याद ना करें, अगर कहना छोड़ दें, अगर मगर के चक्कर से निकल जाएं। बस कुरान पाक में है, हमने ये तकदीर इसलिए लिखी है कई ला तासौ अला मा फातकुम, ताकि तुम अफसुर्दा मत हो उस पर जो तुमसे फौत हो जाए, इसलिए लिखी है तकदीर। और आज मुसलमानों ने तकदीर का क्या तस्वुर बना लिया। इकबाल ने कहा कि बना के तकदीर का बहाना अमल से गाफिल हुआ मुसलमान। ये हमने हाल कर लिया कि तकदीर के बहाने हम अमल से गाफिल, कहीं मायूस हो रहे हैं, तकदीर का सोच के मायूस हो रहे हैं, कहीं हम गाफिल हो रहे हैं आगे मुस्तकबिल के हवाले से। ऐसा नहीं है, तकदीर तो बहुत जबरदस्त चीज है। अल्लाह ने फरमाया ये तो तुम्हें अफसोस से बचाएगी, मायूसी से बचा रही है। और मुस्तकबिल में जो लिखा हुआ है उसके बारे में ये बात ज़हन में रखे, मुस्तकबिल के सिलसिले में हमें अगर कहने की इजाजत दी गई है, हालांकि वो भी लिखी हुई है, यानी अगर आइंदा के लिए आप कहें अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने ये काम कर लिया तो उसका ये नतीजा होगा। किसान कहता है अगर मैंने बीज बोया तो फसल लगेगी, अगर मैंने दरख्त लगाया तो फल लगेगा, अगर मैंने इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका प्रॉफिट मिलेगा, अगर फला कारोबार शुरू किया तो उससे इतना नफा मिलेगा। यहाँ सब कह सकते हैं आप, अगर वगैरह वगैरह कह सकते हैं आप। ये बात हदीस से भी साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कई मौकों पे अगर खुद इरशाद फरमाया है, आपने खुद इरशाद फरमाया, ये मुस्तकबिल की बात है। अब इसमें तकदीर का क्या होगा, तो देखिए यहाँ तकदीर अगरचे यहाँ भी लिखी हुई है, लेकिन ये हमें नहीं मालूम कि हमारी तकदीर में क्या लिखा हुआ। और जब हमें बिल्कुल उस सिलसिले में ब्लाइंड रखा गया है मुस्तकबिल के हवाले से कि तकदीर क्या है, तो हमारे पास हर ऑप्शन खुला हुआ है, हमारे पास जो कुछ हमारे इख्तियार में वो सब हम कर सकते हैं, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। और इंसान इसी तरह चलता है, अपने लिए सही सही फैसले करता है, आगे बढ़ता है, कदम उठाता है, स्ट्रगल जारी रखता है, नताइज की उम्मीद रखता है, कामयाबी की तवक्को रखता है, मुकाबला करता है, फाइट करता है, बड़े बड़े मैदानों में शरीक होता है, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे माशी मैदान हो, चाहे फिजिकल वर्ल्ड की बातें हो, चाहे रूहानी मामलात हो, जो भी सारी चीजें इसी पे चल रही है। मुस्तकबिल के अंदर इंसान को उम्मीद है,
तकदीर नहीं रोकती आगे बढ़ने से। इसलिए इकबाल ने इसी मफहूम में कहा कि अमल से गाफिल हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना, यानी तकदीर का बहाना बना के हम ये सोच के बैठ गए भाई जो लिखा होगा वो हो जाएगा, हमें क्या जरूरत है करने की। ये जो सोच है ये बड़ी मनफी सोच है, ये तो गैर इस्लामी सोच है। तकदीर इसलिए नहीं। आपके सामने एक चीज रखी हुई है, पानी भी रखा हुआ है पीने के लिए, जहर भी रखा हुआ है। अब आपको क्या पता कि आपके मुस्तकबिल में क्या लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या ये सोच कर कि भाई मौत लिखी होगी तो वो तो आनी है, मैं बच नहीं सकता, पानी पीऊं या ना पीऊं तो जहर ही उठा के ये पी जाऊं, मौत लिखी होगी तो आनी है, नहीं लिखी होगी तो नहीं आएगी, तकदीर तो है ना, तो जहर उठा के पी लिया। बचेंगे नहीं बचेंगे। इसलिए ऐसी गलती कोई नहीं करता। सब जानते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि क्या लिखा है, लिहाजा मुझे पानी पीना। अब अगर आपकी तकदीर में मिसाल के तौर पर मौत लिखी है तो पानी से भी आ जाएगी, मगर आपको चूंकि नहीं पता लिहाजा आप पानी ही पिएंगे। यही आप पर फर्ज है, खुदकुशी हराम है। इसीलिए ये काम हम पे लागू होते हैं कि तुमने अपने इख्तियार से गलत फैसला क्यों किया, जब तुम्हें मालूम नहीं था गलत फैसला क्यों किया। कोई तकदीर का बहाना करके यहां से निकल नहीं सकता कि जनाब लिखा हुआ था हम क्या करें, मौत आनी थी, फलां ने फलां को मार दिया, वो उसकी मौत आनी थी, अब मारने वाले का क्या कसूर? नहीं कसूर है, उसे क्या पता था कि इसकी मौत आनी है। तो ये चीज समझनी होगी हमें। इस तरह हम चीजों को मिक्स कर देते हैं और जहां भी चाहते हैं ना वो दीन के किसी अकीदे को बिगाड़ के उसको खराब करके फिट कर लेते हैं। वो तसव्वुर हमारा बिल्कुल इस्लामी नहीं होता। अक्सर अपने हक में तकदीर को बना लेते हैं अपने लिए ढाल और दूसरे के मामले में बना देते हैं रुकावट। जब अपना फायदा होता है कहते हैं कि यही लिखा था, और दूसरे के लिए रुकावट बना के कि भाई नहीं तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं, लिखा ही नहीं था। एक साहब थे वो इसी तरह किसी के बाग में चढ़े, ऊपर बैठ गए, आम खाने लगे, बड़े मजे से खा रहे थे आम। तो बाग का जो माली वाली था वो आया, उसने देखा अरे भाई ये कैसे बैठ गया, ये तो कोई चोर है, ये ऊपर बगैर इजाजत के गया। नीचे से उससे चीखना शुरू किया, आओ भाई तुम नीचे आओ जरा, तुम ऊपर कैसे चढ़े? उसने कहा जनाब आप क्या मुसलमान नहीं है? तकदीर में सारी चीजें लिखी होती हैं, आम भी लिखे हैं, अल्लाह ने खाने वाले का नाम लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, मेरी किस्मत में आम लिखे हैं, मैं खा रहा हूं, क्या हो गया? क्या देखिए तकदीर का उसने फलसफा बयान किया अपने हक में। उसने कहा अच्छा ठीक है, इसे नीचे आने दो। फिर डंडा उसके हाथ में था, जैसे ही वो नीचे आया उसने धड़ाधड़ डंडा चलाना शुरू कर दिया। अब वो उधर से चीखा, अरे भाई क्या करो क्या करो? कहने लगे सिर्फ खाने पे नाम नहीं लिखा, डंडों पे भी नाम लिखा हुआ है। तकदीर यहां तक भी आती है, वहीं नहीं रुक गई ऊपर आम के मामले में। अब खामोशी से खाओ, डंडे जितने लिखे हैं उतना तो पिटोगे तुम। कहने लगा मैं समझ गया भाई, मेरी तौबा। तो हम भी कुछ यही करते हैं। जहाँ कहीं नमाज रोजे की बात आती है तो देखिए लोग कैसे आराम से कह देते हैं अल्लाह तौफीक देगा तो पढ़ लेंगे, तकदीर में होगा तो पढ़ लेंगे। अच्छा, बाकी काम सारे अपनी मर्जी से कर लिए, वहां इंतजार नहीं किया। सीधे चलने की बात होती है, भाई अच्छी जिंदगी गुजारो, नेक अमाल करो, देखो ये बुरे काम छोड़ो। अरे भाई तकदीर में होगा तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। कहीं बच्चों के हवाले से हमारी जिम्मेदारियों का सवाल होता है तो वहां भी छोड़ देते हैं, भाई ठीक बच्चे हैं, अल्लाह ने हिदायत लिखी होगी, खुद ही सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन कोशिश देखिए, वो उससे जान नहीं छुड़ा सकते, वो अपनी जगह है, जैसे और चीजों में कोशिश है। हमें चूंकि पता नहीं है तकदीर में क्या लिखा, इसीलिए तो अल्लाह ने छुपाया रखा है उसको। अगर पता चल जाए तकदीर में क्या लिखा है तो फिर तो सारे काम रुक जाएंगे, फिर ये जिंदगी मुअत्तल हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल ऐसी है, आगे बिल्कुल ब्लाइंड जैसे बस। और जब हो जाता है तो फिर ये तय है कि वही तकदीर में था, बस ये अकीदा है हमारा। तो इसे तकदीर जो है ये रुकावट नहीं बनती और इसकी बुनियाद पे हमारा कोई काम रुकना नहीं चाहिए और माजी पे हमें अफसुर्दा नहीं होना चाहिए। उसके लिए फरमाया अगर वगर कह करके मत अपने आप को परेशान करो और मायूसी में मत अपने आप को ले जाओ, इसलिए इससे बचो।